Suppose somebody says the lithosphere strength increases with depth. Suppose some error question, lithosphere strength becomes stronger with depth. What law it follows? फ्रिक्शन लॉ. कितना तक आराम से आंसर दे दिया. फ्रिक्शन लॉ. कहाँ फ्रिक्शन क्या लिथोस्फीयर है? But ultimately it is connected, no? As you go down, confining stress increases, rock is stronger, you require more, circle becomes larger, because the envelope is dead. नहीं. होल्डिंग केस में फ्लो कोहेशन तो फिर इसका ही फेनोमेनन में आता हूँ. होल्डिंग जब होता है ना, I told the different layers are there. You apply same stress, one will be open folded, another will be tightly folded. Why this type of difference is coming? Though you are applying same stress, there how easily or how difficultly one layer flows. वो viscosity का ऊपर डिपेंड करता है. Mechanical property of the layer. Viscosity is a mechanical property of the layer. वो flow. ये लेकिन friction law. Friction is responsible for all these things, Understood this part ना, up to this point? ठीक है. और बताएंगे तो दिन चला जाएगा, सब खत्म नहीं होगा. Sir, some Mohr circle explains only conjugate set of fractures. अच्छा ठीक है. और क्या ऑप्शन है? और ऑप्शन. In nature we should get conjugate set of fractures. Yes, you should get. Always you should get. Otherwise how it will happen? Because nature will always define sigma 1, sigma 2. Always we will get conjugate. Yes. Always you will But get. sir, locally we find these happen. आपके एरिया में दो तो मिला है ना? आपके एरिया में तो. Fine, I am seeing conjugate in the field. I am saying कि other than conjugate also we get in the field, ना? अदर देन कंजुगेट नहीं मिलेगा. अब एक स्ट्रेस होगा ना, कंजुगेट नहीं मिलेगा. और एक स्ट्रेस आके पहुंच गया आफ्टर फ्यू मिलियन ईयर, और एक कंजुगेट सेट मिलेगा. तो दे में इंटरफेयर ना. आप दो सेट मिल रहे हैं आपके एरिया में, यू कैन फाइंड सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3. नाउ अभी देखो आप, मैं तीनों का नाम लिख के देता हूं इधर. एक तो नाभियर कूलम फेल्योर क्राइटेरिया. मोहर कूलम फेल्योर क्राइटेरिया. Another is Bayes' law, Bayes' law. ये सब फ्रिक्शन लॉ में जाता है. Bayes' law. Then over एक है ना, मोहर कूलम, नाभियर कूलम, Bayes' law. Bayes' law particularly say, the lithosphere is strength. Now lithosphere is strength. See, probably this would have been covered in the structural geology class. Lithosphere is assumed to be whole entire lithosphere. तो जब हम बोलते हैं brittle means entire lithosphere is brittle. But fold कितना डेप्थ में डेवलप करता है? Folds develop at 15 किलोमीटर डेप्थ या 10 to 40. आप लिथोस्फीयर आप ले लेंगे ना ऐसा, you could take the entire lithosphere up to 10 kilometer it is brittle. 10 to lower crust. 10 to lower crust कितना आता है? Lower crust नहीं सर, सायल का सायल is 20 किलोमीटर ना, 25 किलोमीटर. ये डक्टाइल सायल का नीचे बना. तो फ्रॉम सायल का नीचे से लिथोस्फीयर तक, so 10 to 25 kilometer is ductile, remember. But when we are considering plate tectonic, we assume entire thing is brittle. This part we neglect. But plate is a very large scale feature. उसमें folding does not account for much. Folding कहाँ account करता है? जब when we see the deformation within the shear zone, deformation within the fault, there this type of ductility comes into picture.
Otherwise, you can assume the entire lithosphere to be brittle. But in fact, this few kilometers, 15 kilometers is ductile. The force develop here. But प्लेट टेक्टोनिक में एंटायर लिथोस्फीयर को ब्रिटल मान लेते हैं. बट व्हेन यू कम टू फोल्डिंग ना, वी एज्यूम दिस इज डक्टाइल, दिस इज नॉट ब्रिटल. फोल्डिंग यही डेवलप करता है. ओनली द मटेरियल इज डक्टाइल, हाउ फोल्ड विल डेवलप. इसलिए देयर इज ए जेली सैंडविच मॉडल ऑफ लिथोस्फीयर. दिस इज कॉल्ड जेली सैंडविच मॉडल ऑफ लिथोस्फीयर. जेली सैंडविच मतलब ये है हार्ड, दिस इज हार्ड, दिस इज सॉफ्ट. 25 to 150 brittle. 25 to 150. The other rest part of the lithosphere is 150 kilometer. Plate is asthenosphere is here, asthenosphere. So this is again ductile. Asthenosphere is again ductile. Ductile means fluid. This is solid. This is solid. This is ductile. This is called jelly sandwich model of lithosphere. Okay? Now, I just come. Now, what is saying, Now, let us see how you have understood. So these are the things now you see. I'm not drawing those circles again. ठीक है. Suppose I ask you, एक rock है. There is a rock like this. I am applying some stress. 40-25. But the rock will break or not? तो आप suppose कल आप गए कहीं. You become an engineering geologist, in some company, construction company. आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है, एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन करना है. ब्रिज कंस्ट्रक्शन करना है. ब्रिज क्या है? नीचे बेसमेंट होता है, बासाल्टिक बेसमेंट, सैंडस्टोन बेसमेंट, कोई तो बेसमेंट होगा ना. आप ब्रिज के ऊपर क्या करेंगे? यू विल टेक द व्हीकल्स, गाड़ी चलेगी. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 40 MPa लोड इज अप्लाई. इतना गाड़ी जा रहा है तो मिनिमल आके 40 MPa लोड इज अप्लाई. एंड कॉन्फाइनिंग स्ट्रेस जहां आप रखे हैं वो इज 25 MPa. अंडरस्टूड माय पॉइंट ना? सपोज यू आर आस्क्ड टू इवैल्यूएट वेदर द बेसमेंट इज स्टेबल और नॉट. ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा? क्या करोगे? ये अप्लाई और मोर एनवलप. अब यही है तो हाउ मच स्ट्रेस इज वर्किंग, क्या करना? आप उसी जगह को जाओ, यू गो टू दैट प्लेस एंड यू सी देयर विल बी सर. यहाँ 30 डिग्री लाइन ड्रॉ करो. देयर विल बी अदर. दिस इज ए फ्रैक्चर और non-existing, suppose non-existing also. There may be other fractures here and there. पत्थर में और भी फ्रैक्चर होंगे ना. फ्रैक्चर का थीटा यू कैन मेजर. सपोज दिस इज द ब्रिज, हियर विल बी बेसमेंट, हियर इज द बेसमेंट. इसका ऊपर जाएगा गाड़ी से. ये आपका डेक्कन बासाल्ट है, ठीक है ना. इसका कन्फाइनिंग स्ट्रेस आपका 25 MPa. गाड़ी जब चलेंगे इसका ऊपर 40 MPa एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल गिव दिस. नहीं, बासाल्ट का अंदर देयर विल फ्रैक्चर्स. आप फ्रैक्चर का मेजरमेंट करो. सिग्मा 1 इज लाइक दिस, सो थीटा एंगल यू कैन कैलकुलेट. सो यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ थीटा ना. ये थीटा कितना है, ये कितना थीटा है, तो कैलकुलेट कर पाओ. सो कैलकुलेट नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस ईच प्लेन का ऊपर. How much normal stress is there? How much shear stress is there? For each plane you can calculate. And you can calculate at 30 degree position में, 30 degree position में कितना normal stress, कितना shear stress करेगा.
These are the exercise you have to do first. Fracture measurements and calculate sigma 1, sigma n and tau on each fracture. And 30 डिग्री पोजीशन में कोई फ्रैक्चर है तो ठीक है, नहीं तो यू जस्ट कैलकुलेट 30 डिग्री में रॉक ब्रेक कर सकता है ना. रॉक ब्रेक करेगा तो 30 डिग्री में ब्रेक करेगा. सपोज देयर इज नो फ्रैक्चर अलोंग 30 डिग्री पोजीशन, इट मे क्रिएट अ न्यू फ्रैक्चर देयर. So along that also you calculate sigma and sigma tau. You plot them in this figure. This figure is known to you, na? 0, 5, 10, 15. In the normal stress, shear stress is 5, 10. You make it in the graph, na? This angle is 30 degree. You find these values you have found out, na? You plot them. Will fall here and there. If they fall inside the envelope, so those fractures are stable. Nothing will happen. If it is outside, so वहाँ को सीमेंट लगाओ, नॉट बोल्ट टाइट करो. These are the remedial measures you can suggest. सर वो पॉइंट्स हम लोग कैसे लेंगे? ये आपके निकला है यहाँ सिग्मा n इज इक्वल टू 310, टाउ इज इक्वल टू 250 निकले हैं. दिस वैल्यूज यू विल फाइंड आउट ना फ्रॉम हियर. फार्मूला आपको मैं दिया, तो उसके लिए सिग्मा 1 और सिग्मा 2 जानना होगा. ये बोला ना आपको. तो उधर तो हमको पता नहीं होगा. नहीं, वहाँ जाके आप देखोगे ना व्हाट इज 25 MPa. नॉर्मली डेकेंड्रा बासाल्ट में जो कन्फाइनिंग स्ट्रेस कितना होता है, इट इज ऑल स्टैंडर्ड वैल्यूज आर देयर. सर अननोन पोजीशन. अननोन पोजीशन बोला ना आपको 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 26 MPa ना. If you go 1 kilometer 26 MPa, roughly make it 30 or within that limited range. और ये गाड़ी कितना जाएगा एट ए टाइम, दैट यू कैन कैलकुलेट ना. सपोज यू आर बिल्डिंग ए रिजर्व है, एक डैम बना रहे हैं आप, कितना पानी एट ए टाइम इट विल स्टे देयर, पानी का वेट कितना होगा, यू कैन कैलकुलेट ना. So that is your sigma 1. Sigma 3 value is very less. 26, maximum 26 you can take. 1 kilometer का अंदर इतना है. अभी समझ गया ना? So these values you can calculate ना? नहीं तो doubt है भाई. सिग्मा 3 we can take 26. हाँ. सिग्मा 1 we have to assume. Assume नहीं. अब गाड़ी जाएगा ना ऊपर. 1 सेकंड में कितना गाड़ी जाता है? 40 कार विल मूव, 60 कार विल मूव. एक कार का इतना टन है, तो वहां से कन्वर्ट करो. रिजर्वर बना रहे, इतना पानी रहेगा, उसका वेट कितना है, रो जी एच, वो बना के इसको निकालना पड़ेगा. सिग्मा 1 इज नोन, सिग्मा 2 इज नोन, सो यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यूज ना फ्रॉम फार्मूला. ठीक है. सर अगर एक टनल बन रहा है तो ऊपर डिफरेंट तरह के रॉक फॉर्मेशन है. हाँ. तो सबका उसका वेट निकाल दो, तो स्टेबल होगा कि नहीं. आपको टनल को स्टेबल कर रहा है ना. टनल सपोज ऐसा है ना, ऊपर दिस इज योर हिल, दिस इज योर हिल एंड टनल इज हियर लाइक दिस. दिस इज द टनल, यू आर मेजरिंग इट्स स्टेबिलिटी. तो ये कितना वेट डाल रहा है इसका ऊपर, यू कैन कैलकुलेट ना. सो दिस इज सपोज 30 MPa. 30 MPa. नाउ व्हाट इज ये डेप्थ के हिसाब से कितना है आपका रो सिग्मा 3 वैल्यू निकालो आप. दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ द टनल. इसको आप एसेस नहीं कर रहे, आप ये जो कर्वेचर को आप एसेस कर रहे हैं, तो इसका कितना हाइट है निकाल सकते हो. सिग्मा 1 सिग्मा 3 वैल्यू कर कैलकुलेट. सिग्मा 1 इज द वेट, सिग्मा 3 इज ए नोन वैल्यू, 26 25 जो भी है, इसका वैल्यू आपको गिवन, यू फाइंड आउट फ्रॉम दीस टू वैल्यूज यू कैन कैलकुलेट. So we get a hill and topography. No? So whatever, you just find out how much mass is lying. Suppose hill has a topography like this. No, not here. Huh? Along the tunnel. Along the tunnel, Hill and topography. hill, ये तो straight जाएगा.
तो इसका ऊपर कितना लोड है, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इट विल वेरी, तो पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट कॉन्स्टेंट, टेक एवरेज वैल्यू, नो प्रॉब्लम। ठीक समझता है नहीं थोड़ा ऐसे करके सिग्मा 1 सिग्मा 2 इफ यू नो, यू कैलकुलेट these things and plot it here. So this will tell you which fracture is stable, which one to be treated properly, new fracture 30 degree position कहाँ निकलेगा वो भी कर सकते हैं आप. So that is the use of Mohr envelopes are very easy to construct. 30 डिग्री में दो लाइन ड्रॉ करना है बस, और तो कुछ है ही नहीं उसमें. Because you know the principle, why 30 डिग्री, और क्या चाहिए आप, और कुछ एंगल होगा नहीं उसमें. सब रॉक का फिक्सन है 0.65, so theta phi is equal to always 30 degree. So then you are working suppose in a कोई रोड साइड में, हिमालय में आप इंजीनियरिंग जियोलॉजी में काम कर रहे हैं, यू आर कंस्ट्रक्टिंग ए रोड, रोड का ऊपर कितना मटेरियल पड़ा है, हिल कितना है, वो कैलकुलेट करो. सिग्मा 1 sigma 3 is a known values, you know, for different parts. You can find a map also. So you see whether structures are stable or not. बड़ा बड़ा डैम जो बनाते हैं, हकरानंगल डैम, हीराकुद डैम, दिस एक्सरसाइज द जियोलॉजिस्ट डू. वेरी इजी ना. जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जाके वहाँ ना वो अपने वर्कर को सिखाते हैं. तो वो करते रहता है. तो वो बोला ना, एक कॉन्फ्रेंस में गया था, जियोलॉजिस्ट का तो कोई इम्पोर्टेंस है नहीं आज तक. मैं भी बोला जियोलॉजिस्ट को, डॉक्टर का भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं, किसी को मना नहीं, पैरासिटामोल के नहीं जानते हैं क्या, साइड सब लोग जानते हैं, तो डॉक्टर का क्या वैल्यू है. ऐसे जियोलॉजिस्ट का कोई वैल्यू नहीं है आजकल. वो जाता है फील्ड तो रहता है, तो सिखा देता है कैसे मेजरमेंट करना, कैसे थीटा वैल्यू लेना, बस. सो इजी. The Mohr has done all these things, making the things so easier. Okay, we'll go slightly ahead, otherwise you cannot finish. बहुत है लेकिन ठीक है, आज जितना हो पाएगा. There you go. Point you see. Suppose मैं आपको ऐसे की सिचुएशन देता हूँ. सिग्मा 3 है ना और सिग्मा 2 है ना, ये ऐसा है. This different situation. I am making sigma 3 extension. So can you plot it in the diagram? ये ऐसे करके ना आप इसको ऐसे ड्रॉ करोगे, 10 इधर लोगे, ऐसे प्लॉट होगा ना. ठीक है ना. ठीक है ना. मैं क्या पूछता हूँ आप लोग को, सपोज अभी तो ठीक है ना, नो प्रॉब्लम ना. If I give a diagram like this, you plot it here. Suppose I'm just asking you, you know. ऐसा ठीक है ना. अब can you put it in that diagram? वो डायग्राम में पुट कर सकते हैं क्या आप यही डायग्राम में पुट कर सकते हैं. पढ़ कर देखा मेरे को, देखा. हाँ, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, ऐसे मैं ड्रॉ किया आपको. पहले मैं आपको एक मोर सर्कल ड्रॉ करके उस पर 2 10 दिखाया. अब ड्रॉ करके मेरे को दिखाओ, bring it to the diagram. नहीं ड्रॉ किया, कहाँ ड्रॉ किया देखा.
सिग्मा 1 कौन सा, सिग्मा 3, और देखा किसका, वो 10 है, हाँ? सिग्मा 1 will be 2. Which is bigger, 2 या 10? 2 is bigger. So sigma 1 will be like this. समझा कि नहीं समझा? हाँ? पॉइंट समझता है? अरे ऐसे कैसे है? अभी फ्रैक्चर डेवलप करो, फ्रैक्चर डेवलप करो, कैसे डेवलप होता है देखते हैं। फ्रैक्चर डेवलप करो, कैसे डेवलप करेगा? आई हैव टोल्ड यू ना 30 डिग्री एंगल डेवलप करो। एक समझने का मजा है, हाँ? हाँ। क्यों? यही तो गलत गड़बड़ किया ना, तो प्रिंसिपल को आधार नहीं करता। 30 डिग्री एंगल विद व्हाट? हाँ? कैसा जाएगा? मैं दोस्त ऐसा और ऐसा, कौन सा? ये फर्स्ट वन, ये सेकंड वन, व्हिच वन इज करेक्ट? सेकंड वन। सेकंड वन इज राइट। ऐसे डेवलप करेगा, ऐसे ऐसे। सिग्मा 1 के साथ 30 डिग्री ना, वही प्रिंसिपल देखो आप। तो व्हिच इज सिग्मा 1? क्योंकि अभी ना द ब्लॉक इज अंडर टेंशन, one is a larger tension, another is a smaller tension. So smaller tension is compression, the larger compression. Remember this part. आप ऐसे पुल करते हैं, हाँ इधर ऐसे पुल करते हैं ना, इधर ही पुल करते हैं। Smaller pull, compression, larger compression. वो समझो थोड़ा कोई। Understood this part? Up to this point. Now we are discussing on the tensional side now. From compression to tension हम चले गए अभी। कि हमेशा तो every time you will not find compressional stress ना, sometimes it may become tensional also. Tensional में how it behaves? नहीं समझा ना? आप सबको दिस इज द ब्लॉक, आप ऐसे प्रेस कर रहे हैं, इसको ऐसे प्रेस कर रहे हैं, इसको भी आप प्रेस कर रहे हैं, दोनों साइड से प्रेस कर रहे हैं। 10 2, तो ये सिग्मा 1, ये सिग्मा 2, तो फ्रैक्चर ऐसे डेवलप करता है। तो अभी क्या होगा, ये सिग्मा 2 जो 2 था मैं थोड़ा कम कर दिया, 2 से मैं 0 ले आया, ये 10 था उसको 8 कर दिया, तो सर्कल थोड़ा सेंटर तरफ आ गया, ओरिजिन तरफ आ गया, सेंटर तरफ इधर थोड़ा आ गया, 0 10 ऐसे होगा। मैं अभी 2 जो 0 कर दिया इसको मैं क्या करूंगा, रिवर्स करता हूं, इसको रिवर्स करता हूं, इसको कंप्रेशन करता हूं। ये 10 से 8 आया, 8 से 6 आया, बट इसको मैं रिवर्स करने लगा, तो ये क्या रहा, सिग्मा 3 ना, ये तो सिग्मा 1 और थोड़ा कम किया, at one point this will become 0, this will become suppose 6 7, ये 6 7 पुलिंग हुआ, ये 0 हो गया, तो which is sigma 1? यही सिग्मा 1 है, 0। you see, पहले ऐसे था, मैं इस सर्कल को क्या करता हूं, फिर यहां लेके इधर डाल दिया। सिग्मा 1 तो हमेशा इस तरफ है ना, सिग्मा 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिग्मा 2 ना, ये फिर सिग्मा 1 हुआ, ये सिग्मा 2 हुआ। मैं बोलता हूं अभी क्या किया, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे करूंगा, इसको ऐसे करूंगा, तो इस तरफ जो रहेगा सिग्मा 1 रहेगा, इस तरफ जो रहेगा सिग्मा 2 रहेगा। हाँ बता
एक्सटेंशन है तो अगर ज़्यादा एक्सटेंशन है तो भी वो मतलब कम स्ट्रेस ऐसा। अब दोनों कंपेयर करो, व्हिच इज बिगर? सर ऐसा क्योंकि कंप्रेशन की कंपेरिजन टेंशन को मतलब कंप्रेशन को ज़्यादा वेट देते हैं। वेट इज नहीं। जैसे सपोज आप नाउ दोनों अभी टेंशन में है ना, दोनों सिग्मा 1 सिग्मा 2 वो टेंशन में ना, which is more core? Which is more core? Sigma 2 is more core ना, सिग्मा 1 न्यूमेरिकल साइन भी करना पड़ेगा ना, वही तो बात है, यही तो मैं समझा रहा हूँ। अब देखो ऐसा है, ये जो व्हाट तो बात नहीं है, आप तो इस डायग्राम को समझो। आप मैं ये सर्कल को आप जो ग्रेजुअली शिफ्ट ऐसे ऐसे शिफ्ट करके जा रहा है। ये आपका ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 है। दिस इज ऑलवेज लार्जर देन दिस ना। मैं इसको जब यहाँ ले लिया, व्हिच इज सिग्मा 1? सिग्मा 1 इज दिस, सिग्मा 2 इज दिस, सिग्मा 2 इज 0, सिग्मा 1 इज 10। मैं फिर थोड़ा सा इस तरफ ले जाऊंगा, इधर ले जाऊंगा इतना, तो दिस इज सिग्मा 1, दिस इज सिग्मा 2। ना इधर ले जाऊंगा, इधर ले जाऊंगा, यही सिग्मा 1 इज 0, सिग्मा 2 इज -3। ये बड़ा है ना। सर अगर इन केस ऑफ टेंशन को पॉजिटिव ले तो कंप्रेशन। हाँ, अब से टेंशन को फिर इस तरफ आप ले आओ, वो तो एक्सिस अलग हो गया। वही बात है। अब किसको मान के चलते हैं हम? कंप्रेशन को मान के चलते हैं एज फ्रैक्चर क्राइटेरिया, तो कंप्रेशन को पॉजिटिव मान के चलते हैं, तो ये बड़े वैल्यू रहेगा। आप सपोज टेंशन को इस तरफ ले आया, कंप्रेशन को उस तरफ ले लिया, ट्रीटमेंट विल बी डिफरेंट। इसलिए ये थोड़ा पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ, हम लोग कंप्रेशन को मान के चलते हैं एज ए फेल्योर क्राइटेरिया। जो कंप्रेशन फेल्योर क्राइटेरिया है, टेंशन फील्ड में कैसे फेल्योर करेगा हम वो देखेंगे। मेजर क्राइटेरिया इज कंप्रेशन, उसको पॉजिटिव मानते हैं हम। वर्क नहीं करता सर कंप्रेशन। हाँ? अगर सेम कंप्रेशन लगाया और सेम टेंशन तो कंप्रेशन में पहले फेल करेगा। देखो अभी टेंशन में ब्रेक करेगा ना। अभी तो ये आ रहे हैं हम लोग, अभी समझा कि नहीं समझा? व्हिच वन विल बी सिग्मा 1, व्हिच वन विल बी सिग्मा 2। ये डॉट्स देख के आप सिग्मा 1 नहीं बताना, इसका साइन देखने का। नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव भी हो सकता है, बट इट इज वैल्यू इज मोर देन दिस। ये पहले इसको बिल्कुल समझना एकदम। सिविल के लोग इसका रुको, अभी सिविल वो समझेंगे ना, वो भी यही करते हैं। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग डिफरेंट, यू नो। दे ब्रिंग द एक्सटेंशन फील्ड टू दिस साइड, कंप्रेशन फील्ड टू दैट साइड, तो कोई डिफरेंस नहीं, सेम डिफरेंस, यू नो। ये बट समझना बड़ी बात है। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल बोला था आपने, लाइक दैट ओनली। ये समझने का बात है, कन्वेंशन क्या है तो समझना अभी भैया। हाँ? अभी मैं बोलता हूँ हाउ द फ्रैक्चर विल डेवलप। फ्रैक्चर कैसे डेवलप करता है? तो दे विल डेवलप लाइक दिस ना। दे विल डेवलप मेकिंग 30 डिग्री एंगल, ये ना 30 डिग्री एंगल करेगा ना। तो समझा कि नहीं समझा? तो मैं कैसे प्लॉट करूंगा इसको? ऐसा ना, यहां जब हम प्लॉट कर रहे थे ऐसा, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, ये भी, अब कोई डिफरेंस सर, तो उस ब्लॉक में जब हम लोग एक्सटेंशन का डायरेक्शन दिखा रहे हैं तो हम लोग को माइनस इन लिखना होगा या नहीं लिखना? माइनस लिखना पड़ेगा। सर हाँ, आपका कन्वेंशन है ओरिजिन से आपका कैंसिल हो, तो ये 120 डिग्री नहीं होगा ना टेंशन साइड में आपने यह जब आएंगे उसका साथ पैरेलल ट्रांजिशन हो। वेट इज 2 मिनट वेट, समझा ना? अभी देखो टेंशन तो फ्रैक्चर इस डेवलप करेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन इट हैज ए बिग डिफरेंस। तो बताता हूँ कैसे।
अब देखो वो क्या बोलता है। ऐसे है ना, ये आप तो टेंशन दे दिया 2, ये टेंशन 10, माइनस माइनस। तो फ्रैक्चर कैसे डेवलप करता है? ऐसा ना, ऐसा। समझे कि नहीं समझा? तो कोई लाइन देखो आप, 60 डिग्री 2 थीटा। सी द ऑब्जर्वेशन सेज डिफरेंट केस है ना। आप देखो ऐसे सब चौक है, तो इस तरफ आप एक्सपेरिमेंट करते थे। व्हेन यू आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, यू आर प्रेसिंग इट ना, यू आर प्रेसिंग इट, ऐसे प्रेस करते थे ना। यहां जब आप आ जा रहे हैं, आप पुल कर रहे हैं, यही तो डिफरेंस है ना। हियर यू आर प्रेसिंग, यू सी अर्लियर केस, हियर इट वाज प्रेसिंग, pressing. Here it you are pulling. Follow this point. Huh? Take the chalk. ऐसे चौक लेते हैं, मैं ऐसे पुल करता हूँ, ठीक है ना। फ्रैक्चर कैसे डेवलप करेगा? मैं ऐसे रखता हूँ, यही ना। अब देखो ये पुल करता हूँ, प्रेसिंग फ्रॉम दिस साइड, यू सी। देखो मेरे को, मैं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूँ आप लोग को। ऐसे 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 मैं खींच रहा हूं, ऐसे ही हो रहा है। सो व्हिच इज सिग्मा 1? मैं ऐसे पुल कर रहा हूँ ना, 10 से पुल कर रहा हूँ। व्हिच इज सिग्मा 1? यही सिग्मा 1 ना, ठीक है ना। तो ये जो एंगल है ना, इट विल बी 90 डिग्री या 80 डिग्री। कैसे? ये ऐसे नहीं रहेगा, बिल्कुल आगे ऐसे रहेगा, ऐसा ऐसा। हाँ, नहीं समझा ना? आप देखो, मैं ये चौक से पहले चालू करो। चौक ऐसा है, मैं इसको 10 से पुल कर रहा हूं, 2 से पुल इधर से कर रहा हूं, 0 पुल सपोज है, मान लो 2 पुल कर, जैसे इसे पुल कर रहा हूँ, ये ब्रेक करता है, ये फ्रैक्चर डेवलप करता है ना, ये फ्रैक्चर डेवलप करता है। तो सिग्मा 1 के साथ कितना एंगल किया? ये फ्रैक्चर, इट विल नॉट मेक 30 डिग्री, इट विल मेक समथिंग 5 डिग्री या 10 डिग्री, 30 डिग्री करेगा नहीं। एक पुल कर रहा हूँ, सर एक्सटेंशन और कंप्रेशन के लिए अलग-अलग फेलियर इन्वॉल्व होता है। वही में आ, ये इट इज 5 डिग्री, इफ इट इज 5 डिग्री विद सिग्मा 1, ये जो एंगल ना, ये जो एंगल, ये 10 डिग्री हो जाएगा ना। देखो कम हुआ, समझेंगे? आप जो कंप्रेशन करते हैं वहां तो 30 डिग्री होता है, तो दिस एंगल बिकम 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो टेंशन लेते हैं, तो फ्रैक्चर विद सिग्मा 1 मेक्स 5 डिग्री एंगल और इवन लेस 2 डिग्री एंगल भी करेगा। हाँ, वीडियो से बोलो बोलो बोलो। ऐसा नहीं होता तो वीडियो से स्टार्टिंग नहीं होता तो वीडियो से नहीं देखा आपने, सब वर्टिकल है, वर्टिकल ना, ऐसे वीडियो से नहीं सब खुला ऐसा है, फिर जाके पुल कर दे ना, वो सिग्मा 3 ठीक पकड़ा, नजर है वीडियो से के ऊपर उसका। तो ऐसे डेवलप करेगा अभी, समझा कि नहीं समझा? दैट इज द केस, तो ये टिल्ट हो जाएगा ना। अब देखो 30 डिग्री यहाँ 60 डिग्री था, यहाँ 10 डिग्री हो गया। तो अभी ये एनवेलप को 1 मिनट पर बैठो, ये जो एनवेलप तो ऐसे जा रहा था नो, ऐसे जा रहा था ना, ऐसे ऐसे होके, तो ये कैसे आएगा इधर? ये कैसे यूं टिल्ट हो जाएगा ना।
मैं दोबारा बोलता हूँ। अब देखो इस तरफ था कैसा, ऐसा ऐसा, तो ये 30 डिग्री एंगल था ना, ऐसा ये 30 डिग्री एंगल था, 30 डिग्री एंगल था, मीन 60 डिग्री है, रिमेंबर ना। और यहाँ जब आओगे, सपोज दिस गोज स्ट्रेट, यू नो, तो ऑल these circles will have 60 degree intersection. If it goes straight, then fracture plane will have 60 degree orientation. तो आप इसको बना दिया ऐसा 10 डिग्री, तो इसको आप कैसे यहाँ टच करेंगे? तो इसको टच करने के लिए आप ऐसे उसको अंदर अंदर घुसा के लेना पड़ेगा, है ना? इसको ऐसे करना पड़ेगा, so that ये जो सर्कल है ना, will touch at a lesser angle, you know, ये और लेस एंगल में टच करेगा। आप देखो थोड़ा, लेकिन आप गुजरात एनवेलप को ऐसा बनाने के लिए लेस एंगल होता है या लेस? नहीं, लेस एंगल हुआ करके मैं एनवेलप चेंज करूंगा अभी। अभी हाँ कमिंग हाँ तो अपना चॉक ऐसा थोड़ा, तो चॉक इसलिए टूटा क्योंकि उस डायरेक्शन हमने फोर्स लगाया, और ये डायरेक्शन जिस फोर्स के कारण कोई ब्रेक होता है तो वो होती है प्रिंसिपल स्ट्रेस की डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया वो प्रिंसिपल स्ट्रेस की डायरेक्शन होगी, क्योंकि उसके कारण फेल हुआ है चॉक। नहीं, वही तो समझने की बात है। आप जब चौक ऐसा है, आप इसे पुल करते हैं ना, इसके दो डायरेक्शन है ना, तो यहाँ जो पुल क्या कितना -10 ना, तो ये 2 ना, -2 ना, तो व्हिच बिकम सिग्मा 1, यही सिग्मा 1 है, उसके साथ क्या एंगल करता है? आप कोई चौक खोलो,